Okay, Assalamualaikum dear students. Today our topic is about simplification. Of even and odd functions. राइट सो हम जो है वो इवन एंड ऑड फंक्शंस में सिंप्लीफिकेशन करने लगे हैं. सो इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन that is f of minus x, this is equal to f of x, its Fourier series reduces to Fourier cosines. So f of x, this is equal to a naught plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos of n pi by l x if f is even, right? And we have a, उस केस में कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, a naught this is equal to 1 over l, integration is from 0 to L f of x dx, right? And a n this is equal to 2 over L, integration is from 0 to L f of x cos of n pi x by L dx, right? और अगर f of x odd है, if f of x is odd, that is f of minus x, this is equal to minus f of x, then f of x, this is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn साइन ऑफ n पाई बाय एल एक्स, ठीक है. और हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एन किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 ओवर एल, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ n पाई एक्स बाय एल डी एक्स, राइट. और यहाँ पे ये नोट करने की बात है कि इंटीग्रेशन सिर्फ 0 से l तक है, इसलिए क्योंकि हम चाहे इवन फंक्शन कंसिडर करें या ऑड फंक्शन, हम किसी एक साइड ऑफ दी फंक्शन को कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है. तो हमारी इंटीग्रेशन हमेशा 0 से l रहेगी इन केस ऑफ इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है. ऑल्सो फ्रॉम कैलकुलस वी नो दैट integration is from minus L to L g of x dx, this is equal to 2 integration is from 0 to L g of x dx if g is even, ठीक है. अगर g इवन है तो ये किसके इक्वल है, 2 इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू एल जी ऑफ एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे देखिए हमने इसीलिए यहाँ पे ऊपर 2 लगाया है, ठीक है. 2 लगाया है, जो पीछे ए एन का मैंने एक्सप्रेशन लिखा था उधर भी मैंने ऊपर 2 लगाया था, ठीक है. ऑल्सो माई इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस एल टू एल एच ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 0 के इफ एच इज ऑड. अगर एच ऑड है तो फिर उस केस में ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है. ये बातें हमें
कैलकुलस से पता है, कैलकुलस में मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। इवन ऑड फंक्शन को हमने बड़े डिटेल के साथ वहाँ पे स्टडी किया था। तो अगर हम समराइज करें अपनी चीज को, ठीक है, तो इन समरी even function period 2 pi if f is even और l किसके इक्वल है, पाई के, देन fx this is equal to a naught plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of nx with coefficients a naught this is equal to 1 over pi, integration is from 0 to pi f of x dx, or an this is equal to 2 over pi, integration is from 0 to pi f of x cos of nx dx, ठीक है, for n is equal to 1 2. If we have an odd function, ठीक है, so odd function of period 2 pi of period 2 pi if f is odd, l is equal to pi, then f of x this is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn sine of nx with coefficients bn this is equal to 2 over pi, integration is from 0 to pi f of x sine of nx dx for n is equal to 1 2 up to so on, right? So this is our explanation of even functions and odd functions. हमने बड़े अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, इनकी फोरियर सीरीज भी देख ली और फोरियर कोफिशिएंट्स भी. सो अब हम बात करते हैं थ्योरम 1 की. थ्योरम 1 says if we have the Fourier coefficients of coefficients of a sum f1 plus f2 are the sums of the corresponding Fourier coefficients of f1 and f2, right? The Fourier coefficients of C of f are C times
the corresponding Fourier coefficients of f, राइट। सो हम एग्जांपल नंबर 5 करते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास f1 प्लस f2 टाइप का फंक्शन है तो उसके हम फोरियर कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास है एग्जांपल 5 and we have f of x, this is equal to x plus pi if minus pi is less than x is less than pi, and f of x plus 2 pi, this is equal to f of x. So we have f, this is equal to f1 plus f2, where f1 is equal to x and f2 is equal to pi. The Fourier coefficients of f2, यहाँ पे क्या है, ये जो f2 is equal to pi है, the Fourier coefficients of f2 are 0 except for the first one, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारे कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 0 है, ठीक है। और वो क्या है, वो क्या है, फोरियर कोएफिशिएंट वो है पाई, ठीक है। सो हेंस द फोरियर कोएफिशिएंट्स आर ऑफ f1 एंड f2 एक्सेप्ट फॉर a0 व्हिच इज पाई। सो हमें पता चल गया कि bn हमारे पास क्या आ गया है जी। ऑल्सो जो हमारे पास क्या है, द फोरियर कोएफिशिएंट्स आर ऑफ f1 प्लस f2 एक्सेप्ट फॉर a0 विच इज पाई, ठीक है। तो a0 जो है वो क्या है, a0 क्या है हमारे पास पाई है, ठीक है। और जो फोरियर कोएफिशिएंट्स हैं वो है फोरियर कोएफिशिएंट्स आर ऑफ f1 प्लस f2, ठीक है। सो हम देखते हैं कि f1 इज ऑड है। f1 जो है वो फंक्शन क्या है, ऑड। क्यों ऑड है, क्योंकि ये फंक्शन f1 है और ये f2 है, ठीक है। सो फंक्शन f1 क्या है, f ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स के, ठीक है। सो हमारा पहला फंक्शन f1 क्या है, ऑड है। तो हमें पता है ऑड फंक्शन के केस में an क्या है, 0 है, ठीक है। ऑड फंक्शन के केस में सिंस f1 is odd, so this implies that an is equal to 0, ठीक है। so for n is equal to 1 2 up to so on, और bn क्या आ जाएगा, this is equal to 2 over pi, integration is from 0 to pi f1x sin of nx dx, राइट। सो हमारे पास आ गया 2 over pi, इंटीग्रेशन आ जाएगी यहाँ पे f1 of x is x, तो पुट कर ले x sin of nx। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, माइनस एक्स कॉज ऑफ nx ओवर n plus 1 over n, integration is from 0 to pi cos of nx dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पता है कैलकुलस से, तो दिस इज इक्वल टू 2 over pi माइनस x cos of nx over n plus 1 over n sin of nx over n
एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू पाई। अब 0 से पाई के लिए साइन ऑफ एन एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि जब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे पाई तो भी आंसर क्या है 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो भी आंसर क्या है 0। सो ये टर्म क्या है 0, ठीक है। सो हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू 2 ओवर पाई, और जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे अपर लिमिट जब पाई पुट करेंगे तब तो आएगा, जब 0 पुट करेंगे तो इस x की वजह से इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो हमारे पास रह जाएगा माइनस पाई कॉस ऑफ n पाई बाय n, ठीक है। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो सकता है आपस में, ठीक है। सो हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू -2 बाय n कॉस ऑफ n पाई, -2 बाय n कॉस ऑफ n पाई, दिस इज इक्वल टू bn। सो आप b में b1 कैलकुलेट कर लें, b2 कैलकुलेट कर लें, ठीक है। आप n की डिफरेंट वैल्यूज डाल के पुट करके देख ले। सो आपके पास आ जाएगा b1 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -2 बाय 2, b3 इज इक्वल टू 2 बाय 3 एंड b4 इज इक्वल टू -2 बाय 4 अप टू सो ऑन। सो fx हमारे पास फोरियर सीरीज क्या आ गई, दोनों फंक्शंस हैं उनकी सीरीज का सम। तो जो फर्स्ट वाला फंक्शन था जो सेकंड फंक्शन था वो क्या था पाई, और उसका हमारे पास क्या आया था फोरियर सीरीज पाई, ठीक है। उसकी फोरियर सीरीज सिर्फ पाई थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, प्लस दिस फोरियर सीरीज 2, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन ऑफ एन एक्स माइनस 1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x प्लस सो ऑन, ठीक है। सो हमारे पास ये हमारा रिजल्ट आ गया इन दोनों का फंक्शंस की कंबाइंड फोरियर सीरीज का। आई होप इट क्लैरिफाइज, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाफ रेंज एक्सपेंशन की, ठीक है। सो हाफ रेंज एक्सपेंशन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अगर मैं एक सादे अल्फाज में आपको हाफ रेंज एक्सपेंशन समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास क्या है कि हम इवन पीरियोडिक एक्सटेंशन भी देखते हैं इस केस में और ऑड पीरियोडिक एक्सटेंशन भी, ठीक है। यानी हम अपने फंक्शन को इवन और ऑड के केस में जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, और इवन पीरियोडिक एक्सटेंशन भी देखते हैं और ऑड पीरियोडिक भी। सो हमें पता है फॉर अ गिवन फंक्शन f we calculate Fourier coefficients from 6 double steric और फ्रॉम 6 स्टेरिक, ठीक है। अब ये क्या इक्वेशंस थी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, वहां से आपको इक्वेशंस नजर आ जाएंगी, राइट। सो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी f स्टेरिक f ऑफ x दिस इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos of n pi x by l f इवन के लिए, ठीक है। और इसके साथ हमने कोफिशिएंट्स फाइंड कर लिए। f डबल स्टेरिक क्या थी, ऑड के लिए थी, ठीक है। और उस केस में हमारे पास सिर्फ क्या थे, साइन फंक्शंस थे, ठीक है। सो वो कहता है कि अगर हम 6 स्टेरिक को यूज करें, ठीक है, यानी 6 स्टेरिक जो है वो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली,
ठीक है। अगर हम स्टैटिक को यूज करें तो a नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर l इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू l f ऑफ x dx और an इज इक्वल टू 2 बाय l इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू l दिस, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या मिलता है, f ऑफ x दिस इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n कॉज ऑफ n पाई l बाय x, ठीक है। अब ये किसके लिए है, ये इवन फंक्शन के लिए है। और अगर ऑड फंक्शन है तो फिर हम कौन सी यूज करेंगे, फिर हम ये डबल स्टैटिक वाली इक्वेशन यूज करेंगे। bn क्या आ जाएगा 2 ओवर l इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू l f ऑफ x साइन ऑफ n पाई x बाय l dx और f ऑफ x इज इक्वल टू दिस फॉर ऑड के केस में। सो हमें क्या पता, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड द 2 हाफ रेंज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन हमें फाइंड करनी है एग्जांपल नंबर 6 में, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 6 में हमें 2 हाफ रेंज एक्सपेंशन फाइंड करनी है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं और वो फाइंड करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 के अंदर अगर हम एग्जांपल नंबर 6 देखें, सो एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर हमें क्या गिवन है, हमें एक ट्रायंगुलर फंक्शन गिवन है, ठीक है। इसकी हाइट क्या है k, ठीक है, और इसका 0 से l तक है और l स्क्वायर, ठीक है। सो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द 2 हाफ रेंज एक्सपेंशंस if our function is 2kl x, हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 2kl x if 0 is less than x is less than l by 2 and 2k by l minus x if l by 2 is less than x is less than l, right? So अगर मुझे इवन पीरियोडिक एक्सटेंशन फाइंड करनी है तो a नॉट क्या है 1 ओवर l इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू l इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस l टू l, ठीक है, f ऑफ x dx। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर l 2k बाय l। सो इंटीग्रेशन क्या है 0 से l बाय 2 x dx प्लस 2k बाय l इंटीग्रेशन इज फ्रॉम l बाय 2 टू l minus x dx. So this is equal to 1 by 2k by l square, ठीक है। l 2k by l यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी बाय रहेगा, इस l के साथ मल्टीप्लाई होगा 2k by l स्क्वायर आ गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2 प्लस समेशन इसकी आ जाएगी l की आ जाएगी lx माइनस x की आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2 और हमारी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी l बाय 2 से l और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 0 से l बाय 2, ठीक है। सो हम जो है इसको ओपन करेंगे और हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जब हम इसमें ये वाली इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2k बाय l स्क्वायर 1 बाय 2 l स्क्वायर बाय 4 माइनस 0 प्लस l माइनस l बाय 2 माइनस 1 बाय 2 l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और हम इसको लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2k बाय l स्क्वायर 1 बाय 2, हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर
यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 8 प्लस एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 3l स्क्वायर बाय 4. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2k बाय l स्क्वायर बाय 8 प्लस l स्क्वायर बाय 2 माइनस 3l स्क्वायर बाय 8. ठीक है, सो सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2k बाय l स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 8 और फिर आ जाएगा l स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 2k बाय l स्क्वायर इंटू 2l स्क्वायर बाय 8. ठीक है, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2k इंटू 1 बाय 4. सो दिस इज इक्वल टू k बाय 2. So this is our A naught. This implies that A naught is equal to K over 2. Then हम AN फाइंड करते हैं. AN जब हम फाइंड करेंगे, AN this is equal to 2 by L. Integration is from 2K over L. Integration is from L to L by 2. X cos of n pi cos of n pi by lx dx plus 2k by l. Integration is from L by 2 to L. L minus x cos of n pi by l x dx. ठीक है, सो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी. जब आप इसमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आई होप आप कर सकते हैं. सो an दिस इज इक्वल टू 4k ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 cos of n pi by 2 माइनस cos of n pi माइनस 1. ठीक है, सो thus A2 is equal to minus 16k over 2 square pi square और A6 this is equal to minus 16k over 6 square pi square. और इसी तरह आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. और an जो है, an इज इक्वल टू 0 इफ n जो है वो क्या है 2, 6, 4 अप टू so on. ठीक है, 2, 6, 4 है तो an क्या है हमारे पास 0 है. ठीक है, सो हमारे पास आ गई इसकी इवन जो है वो हमारे पास आ गई एक्सटेंशन. दिस इज इक्वल टू f of x फोरियर सीरीज f of x. दिस इज इक्वल टू k बाय 2 माइनस 16k ओवर पाई स्क्वायर 1 बाय 2 का स्क्वायर cos of 2 पाई बाय lx प्लस 1 by 6 square cos of 6 pi by lx plus so on. ठीक है, so this is our even periodic extension. This is even periodic extension. Right, then we have the odd periodic extension. So odd periodic extension क्या आ जाएगी, इसी फंक्शन की bn odd periodic extension. bn this is equal to 8k over n square pi square
साइन ऑफ n पाई बाय 2, ठीक है। हेंस f of x this is equal to 8k over pi square 1 over 1 square sine of pi by l x minus 1 by 3 square sine of 3 pi by l x plus 1 over 5 square sine of 5 pi by lx plus so on, right? So this is our odd periodic extension. So I hope it clarifies. और अगर जो है वो आपके स्टिल भी कोई क्वेश्चंस हो या कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. So that's all for today. Thank you.